میں پہلے تو ایک وضاحت کر دوں جی محترم شفقت محمود صاحب میرے لیے بڑے محترم ہیں اور تحریک استقلال میں جانے سے پہلے کبھی ہم تم بھی تھے کیا آشنا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو شفقت محمود صاحب کے لیے مجھے بڑی عزت ہے میں ان کی بات پہ نہیں ہنسا آپ نے جو ان سے سوال پوچھا کہ معذرت میں اور معافی میں کیا فرق ہے تو اس پہ مجھے ہنسی آئی کہ کوئی آدمی کہے تعزیت کے لیے جا رہا ہوں کوئی آدمی کہے فاتحہ کے لیے تو کبھی میں تعزیت کے لیے نہیں جا رہا ہوں فاتحہ کے لیے جا رہا ہوں تو میں اس بات پہ ہنسا تھا ورنہ مجھے تو ان کے لیے عزت ہے جہاں تک تعلق ہے میری رائے کا اپوزیشن نے طے کی ہوا ہے یہ بدقسمتی ہے یہ اسی لیے ہمارے ملک میں یہ بحران ہے کہ ہم کبھی اچھائی کو بھی اچھائی تسلیم کر لیں اپوزیشن نے طے کیا ہوا ہے کہ اگر ابھرتے سورج کے لیے پیپلز پارٹی کہے گی کہ سورج ابھر رہا ہے تو یہ کہے گی نہیں جناب یہ غلط فہمی ہوئی ہے ہو تو رہا ہے غروب لیکن اب یہ کہہ رہے کہ طلوع ہو رہا ہے ایسا ہے نہیں کچھ حقیقتوں کو ماننا بھی پڑے گا ساری دنیا کا سارے پاکستان کی پارٹیوں کا یہ موقف تھا جناب امریکہ معافی مانگے یہ حکومت سپلائی لائن بحال کر رہی ہے وزیر اعظم ایک گزشتہ ماہ لنڈن سے لوٹے تو ایک قیامت بپا تھی میڈیا میں لیڈروں کو میں آپ کو اکثر کہتا ہوں اپوزیشن کے پاس بات کرنے کے لیے موضوعات ختم ہو چکے ہیں جو بھی موضوع اٹھاتے وہ اچانک موضوع ہوتا ہے تھوڑے دنوں کے بعد اس کی معنی ہی بدل جاتی ہے وہ اپنی افادیتی کھو چکا ہوتا ہے لہذا یہ وقتی باتیں کرتے ہیں لنڈن سے وزیر اعظم آئے او قیامت تھی جناب لنڈن میں طے کر کے آئے ہیں ابھی پاکستان پہنچے ہیں ادھر سے دے رہے ہیں کہ بحال تو نہیں ہوئی تھی لوگوں نے دیکھ لیا وہ جھوٹی باتیں تھی پھر انہوں نے کہا جناب ایسے ہوگا ساری باتیں غلط ہوئی ہے پاکستان کی اس حکومت نے جرأت مندانہ فیصلہ کیا ہے غیرت مندانہ پاکستان کے وقار کے مطابق اور عوام کی خواہشوں اور امنگوں کے مطابق جناب بحال نہیں ہونی چاہیے لاکھ پریشر تھے حکومت نے بحال نہیں کی ساری لوگوں نے کہا جناب معافی مانگنی چاہیے اس کو بلا شبہ حالات کسی قسم پاکستان ایٹم بم اٹھا کر فوجیں اٹھا کر امریکہ سے اور دنیا کی قوتوں سے لڑائی تو نہیں کر سکتا ہم تنہا بھی نہیں رہ سکتے اس ایک سسٹم میں ہم شریک ہیں لیکن ایک باوقار انداز ہے جنرل صاحب نے کچھ باتیں پارٹی کی وجہ سے چھپا کے کی ہیں کچھ باتیں بالکل درست کی ہیں کہ بھائی ہمارا مطالبہ یہی تھا انہوں نے مطالبے مانے ہیں ایک غیر جمہوری حکومت تھی انہوں نے ان کو اجازت دے رکھی تھی جی سوری کیا کہہ رہے ہیں شفقت صاحب ایک اور بھی تھا کیا ایک اور بھی تھا نا ڈرون اٹیکس کے بارے میں جی وہ ابھی آج میں دیکھیں فیصلہ دیکھیں میں شفقت محمود صاحب میں آپ کو عرض کروں ابھی کیونکہ میں اس میٹنگ میں ہوں نہیں مکمل فیصلہ آیا نہیں مکمل تفصیلات آئی نہیں ہے جنرل صاحب دیکھو اچھی بات کی انہوں نے کہا بھائی ابھی آپ رکیں ذرا باتیں آ جائے ابھی تو میں وہ جو پٹیاں چل رہی ہیں اس کو دیکھ کر ہم کہہ رہے ہیں انہوں نے میں نے جو اس میں پڑھا ہے اس میں یہی ہے کہ ڈرون کے لیے بھی وہ اس پہ غور کر رہے ہیں اور اس کے لیے کوئی بات چیت طے ہوگی اور حکمت عملی طے ہوگی دیکھیں کوئی بھی پاکستان میں سیاست کرے گا پاکستان میں حکمرانی بڑی بات ہے سیاست بھی کرے گا تو پاکستان کے وقار اور خود مختاری کی بات کرے گا چانیو صاحب ایک بات بتائیے کہ اگر جس طرح تحریک انصاف نے یہ کہا عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ نیٹو کھولیں گے تو بہت برا ہوگا ہم دھرنا بھی دیں گے اور عوام کو اکٹھا بھی کریں گے شفقت محمود صاحب اتنا لائے عمل بتائیں گے اسی طرح دفاعی کاؤنسل بھی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اس بات پہ بڑے سخت سٹیٹمنٹس دے چکے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پارٹیز ہیں ان کی وجہ سے پریشر بلڈ ہوگا گورنمنٹ پہ کس طرح ہینڈل کریں گے آپ اگر وہ عوام کو موبلائز کرتے ہیں تو میں دوسری پارٹیوں کے موقف کا ذمہ دار نہیں ہوں جی کہ عمران خان صاحب کیا موقف اختیار کرتے ہیں اور حضرت مولانا صاحب کیا موقف اختیار کرتے ہیں اس سے میرا واسطہ نہیں ان کو جو سوٹ کرے وہ بات کرتے رہیں حکومت کو جو چیز سامنے آئے گی جس کو منہ دینا ہوگا مقابلہ کرنا ہوگا حکومت اور ریاست اس کا مقابلہ کرے گی سیاسی طور پہ میرا یہ خیال ہے کہ ہم اس میں شرمندگی محسوس نہیں کرتے ہم نے عوام کی ترجمانی کی ہے ہم نے پاکستان کے وقار کے مطابق پاکستانی قوم کا مطالبہ تھا کہ انہوں نے ہمارے آزادی کی توہین کی ہے پامال کیا ہے ہمیں موقف اختیار کرنا چاہیے ہم نے ان کی سپلائی لائن بند کی جس کانفرنس کے لیے دنیا نے منتیں کی اس کانفرنس میں نہیں گئے اور انہوں نے کہا معافی نہیں مانگیں گے آپ کو یاد ہے میڈم انہوں نے اعلان کیا تھا ہم معافی نہیں مانگیں گے پھر آج کیوں معافی مانگی ہے اگر ہم کھڑے آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ اگر ہمت سے حکومت کھڑی رہی ہے ٹھیک ہے یہ عوام کے ہی پریشر پر اپنے ہی اعتقاد اور ایمان کی وجہ سے پاکی سلامتی اور خود مختار کی احترام کرتے ہوئے تو اس کی بات کو سراہنا چاہیے اب آنے والے دنوں میں کیا ہوگا جو بھی صورتحال بنے گی ملکی وقار اور آزادی کے مطابق کریں گے پاکستان کوئی ایسے ایرا غیرہ نتو خیرہ ملک نہیں ہے
पाकिस्तान इस दुनिया की एटमी कुव्वत है, पाकिस्तान बहुत बड़ा इस्लामी मुल्क है, पाकिस्तान को एक बड़ी गैरतमंद कौम है, उसकी बड़ी बहादुर अफवाज है, ऐसे कैसे हो सकता है? ओके सेनेटर साहब, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। हमारे साथ एक बहुत ही मोहतरम शख्सियत लाइन पर है, मैं उनसे ज़रा बात कर लूँ क्योंकि उनकी जो आगे लाए अमल है उनसे पता चल सकेगा। मौलाना समीउल हक साहब, आप सरबराह हैं दिफाई काउंसिल पाकिस्तान के, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम। मौलाना समीउल हक साहब, सर थोड़ा सा बताइएगा, ये जो आज पेशरफ्त हुई है, जो माफ़ी किया लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जा रहा है कि जी हम अपना माफ़ी भी मांगते हैं, सॉरी भी करते हैं, हमसे मतलब है, और शर्मिंदा भी हैं, और उस पर नेटो सप्लाई लाइन खोलने का जो ऐलान भी कर रही है हुकूमत, आप इसे किस तरह देखते हैं? क्या आप इसके हवाले से कोई अपनी कोई लाएअमल बताएंगे कि आगे क्या आपका लाएअमल होगा? क्योंकि आप लोगों ने इसके खिलाफ बहुत ज्यादा शिद्दत पसंद स्टेटमेंट्स भी दी और कहा हम नहीं होने देंगे। ये पेशरफ्त तो नहीं है, हकीकत ये पसरफ्त है। अच्छा। और जिल्लत और गुलामी के साथ बहुत तेजी से रिवर्स गियर लगाकर वापस जा रहे हैं। हमने एक जरूरतमंदाना फैसला किया था और असर की बहाली मुनक़ती करने का, उसको कौम ने सराहा था, हमें उस पर लड़ना चाहिए था, और ये बिल्कुल गैर मशरूत मुआफ़ी से मुल्क के वक़ार को और सलामती को और खुद मुख्तारी को दाव पर लगाना एक बड़ा अलमिया है आज पाकिस्तान की तारीख का। आप देखिए कि मुआफ़ी से पहले 3 करारदादें पार्लियामेंट में आई थी और उसमें कुछ कदम लगाए गए शराइत पे, उनमें बड़ी बात यह थी कि ड्रोन हमले भी फौरन बंद किए जाएं जी। तो पूरे पायमाल किया गया आज पार्लियामेंट की बालादस्ती को भी, और कौम के जज्बात आप देख रहे हैं। कल भी तकरीबन एक सर्वे आया था, 75% लोगों ने अमेरिका से नफरत का इजहार किया था। बेशक। तो कौम के जज्बात एहसासात सब पर से पुश डालकर हुकूमत का ये इक़दाम एक बहुत बड़ा काबिल मज़म्मत और काबिल अफसोस है। अच्छा मौलाना समीउल हक साहब, एक ये बात बताइएगा कि आप समझते हैं कि इसमें सिर्फ हुकूमत वक्त का जो है वो इसमें उनकी सिर्फ मदाखलत है, या इसमें पाकिस्तान की फौज जो है उनको भी जाहिर सी बात है उनके सरबराहान को भी ऑन बोर्ड लिया होगा, उनको भी बताया होगा, तो उनकी तरफ से भी कोई इशारा तो आया होगा खोलना ना खोलना? यानी जाहिर बात है कि ये फौज का मामला सिर्फ नहीं था एक जनरल का दूसरे जनरल से, ये 2 रियासतों का मसला है, और एक रियासत दूसरे रियासत की खुद मुख्तारी सालिमियत को पायमाल कर रही है। तो इसमें हुक्मरान और फौज दोनों अपने अपने तौर पर मोरद इल्जाम ठहराए जाएंगे तारीख में भी और अब भी। फौज का काम यह है कि मुल्क की सलामती और आज़ादी और सरहदात की तहफ़्फ़ुज़ करे जी। वो सरहदात का तहफ़्फ़ुज़ भी नहीं कर रहे हैं, ड्रोन हमले हो रहे हैं, जहाज़ों से हमले हो रहे हैं, फिर अपनी ज़मीन हम खोल कर उनको खुला दे रहे हैं कि आप जाएं हमारे पड़ोसी मुल्क में आज़ादी की जंग लड़ने वाले बेचारे मुसलमानों पर गोलियां बरसाएं और हथियार हम भेजें। तो अखलाक और कानून और शरीयत किसी लिहाज से भी ये गवारा करने की चीज नहीं है। एक मुआफ़ी से क्या होगा? मुआफ़ी से वो फौजी हमारे जिंदा हो जाएंगे और मुआफ़ी से हमारी खुद मुख्तारी और सालिमियत महफूज हो जाएगी। मौलाना साहब, आप लोगों का आइंदा आने वाले दिनों में लाए अमल क्या होगा दिफाई काउंसिल का? देखिए, हम तकरीबन 6-7 महीने से अवाम के पास जा रहे हैं। सप्लाई अभी बंद नहीं हुई थी। हमने सलाला चौक के पहले तहरीक शुरू की है। हम अमरीका की हर किस्म की मुदाखलत, लॉजिस्टिक हो या इंटेलिजेंस हो या हमारे सरहदात या हमारे बेस हो, उन सब चीजों से उनका अमल दखल खत्म कराना चाहते हैं। तो हम उसी मौके पर कायम हैं और मेरी बात की चल रही है अपने साथियों के साथ, दिफा काउंसिल के अहम रहनुमाओं के साथ। तो इंशाअल्लाह कल परसों हम इस केस के बारे में मिल बैठ कर कोई लाएहमद तय करेंगे। और असल चीज हमारी ताकत जो है वो अवाम है, पाकिस्तान के 18 करोड़ शहरियों को हम दोबारा उनके पास जाएंगे। मौलाना साहब, आपने इसको आप इस माफी को रद्द करते हैं? बिल्कुल, 100 दफा 1000 दफा हम रद्द करते हैं। ठीक। माफियों से हमारे गयूर फौजी वो जिंदा नहीं हो सकते, न हमारी गोया जो इज्जत और हमीयत पामाल की गई है, न उसको हम
वापस ला सकते हैं। मौलाना समीउल हक साहब बहुत बहुत शुक्रिया गुफ्तगू करने का। नाजरीन, यहाँ पे आपने देखा दिफाई काउंसिल को क्या जो कि सरबराह हैं उन्होंने अपना वाज़ेह मौक़िफ़ बताया। और यहाँ छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद पूछते हैं शफकत महमूद साहब से और अब्दुल कादिर बलोच साहब से इस मौक़िफ़ को वो किस तरह देखते हैं। पटरी की मरम्मत मुकम्मल हो चुकी, ट्रेन कुछ ही देर में रवाना होगी। गाड़ी जाने वाली है। शुक्र है खुदा का। सफर में हूँ पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा जी, मौलाना समीउल हक साहब ने तो कहा है कि वो इस चीज़ को बिल्कुल रद्द करते हैं और वो कह रहे हैं डिप्लोमेटिकली फेलियर है ये। शफकत महमूद साहब, आपने उनकी गुफ्तगू सुनी, वो तो जो उनका मौक़िफ़ था उस पर वो वाज़े तौर पर अभी तक जो है डटे हुए हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, ये जो कुछ भी हुआ होगा पसे मंजर बातचीत ये वो, पीपल्स पार्टी ने जाहिर सी बात है दीगर पार्टीज को भी तो ऑन बोर्ड लिया होगा। क्या आप समझते हैं पार्लियामेंट में बैठी हुई पार्टीज ऑन बोर्ड है इस पे? जैसे PMLN है, मुत्तहिदा है, ANP है, मौलाना साहब हैं, दीगर लोग हैं। शफकत साहब, अच्छा शफकत साहब अपने फोन पे लगे हुए हैं, उनको बता दें कि हम ऑन एयर लाइव है। अच्छा ओके, नहीं अब्दुल कादिर बलोच साहब, आपने मौलाना समीउल हक साहब की गुफ्तगू सुनी और चांडियो साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। जो हमने उनसे कहा था कि जी माफी मांगे तो उन्होंने माफी मांग ली। क्या हम इसको कबूल कर लें? अब हमें इसे कबूल कर लेना चाहिए क्योंकि हमारी तो डिमांड ही यही थी। या आप समझते हैं ये फैसला पार्लियामेंट को बाईपास करके किया गया है? जैस्मिन, मैं इस पर बिल्कुल कमेंट करना चाहूँगा। पहली बात यह है कि दफ़ाई कौंसल या दफ़ाई पाकिस्तान कौंसल जो भी नाम ये कैरी करते हैं जी, ये वार ऑन टेरर वाली कार्रवाई, ये हमारी जो कोऑपरेशन है, ये जो फैसिलिटी हम नेटो वालों को प्रोवाइड कर रहे हैं, ये पिछले 11 साल से प्रोवाइड की जा रही है। ये इस मैदान में इतने लेट क्यों आए और इतने जोश और जज्बे से क्यों आए? किधर थे इस दरमियान में? ये लोग सब के सब पाकिस्तान में मौजूद थे। ठीक, ये दफ़ाई कौंसल इस स्टेज के ऊपर बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर सोचने की ज़रूरत है। हम तो ये कहते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर जो रेजोल्यूशन पास हुआ जी, उससे मुताबिकत रखते हुए अगर जो भी कार्रवाई कल आज के दिन में की गई है उससे अगर मुताबिकत रखती है, आज के फैसले उससे मुताबिकत रखते हैं, तो फिर हमें कोई हक नहीं पहुंचता है कि हम उसकी मुखालफत करें। अगर उससे मुताबिकत नहीं रखते हैं तो हमें पार्टीज़ के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटीज़ या कोर कमेटीज़ है उसमें उस मामले को डिस्कस किया जाएगा और फिर अपोजिशन का रिस्पांस आ जाएगा। चांडियो साहब का प्री डिटरमिन कर लेना, ये कहना कि अपोजिशन तो मुखालफत करेगी, ये करेगी, मेरे ख्याल में ये प्री मैच्योर उनकी बात है, उनको इंतजार करने की ज़रूरत है। और हमें भी ये जानने की ज़रूरत है कि इसके डिटेल्स क्या हैं। फिलहाल लफ्ज़ माफ़ी की बात की जा रही है, ड्रोन अटैक्स के बारे में भी बात की गई थी। एक और एश्योरेंस हमें दिया जाना था कि उनके बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं होने चाहिए। इस हुकूमत की मजबूरियाँ थी, मैं कहूँगा ये हुकूमत की मजबूरी ये थी कि ये इक़्तिदार में आ नहीं सकते थे जब तक अमेरिका को इन्होंने कमिटमेंट नहीं दिया था। ये कंप्रोमाइज़ के नतीजे के तौर पर ये हुकूमत इक़्तिदार में आई 2008 में। उस कंप्रोमाइज़ में एक कंडीशन ये थी कि वार ऑन टेरर में जिस किस्म की कोऑपरेशन परवेज़ मुशर्रफ साहब करते रहे हैं वो उसी तरह से जारी रहेगा, अलावा बाकी काफ़ी बातों के। तो अभी ये जो सलाला वाली कार्रवाई हुई इसमें अपोजिशन सारे मिल के हुकूमत की सपोर्ट में आए तो इनको थोड़ी सी हिम्मत मिली और हिम्मत के बाद उन्होंने सप्लाईज को बंद कर दिया।